Assalamualaikum. Myself is Sundas Anju from Kitkat School Sakhar, affiliated with PMC, Pakistan Monetary Council, Islamabad. Today, the subject we are going to read about is Pakistan. Chapter number 9, and the topic is education in Pakistan. As we know that education is very important in our life, and it also occupies a very fundamental place and fundamental role for the development and progress of a country. Like it is very helpful for the humankind just to pass through the stages of evolution to reach the path of science and high technology. We know that comparison of as compared to before and after now, there is a huge change in education level, the literacy level. क्योंकि from starting from the independence 14 August 1947, after that we have different policies and education level system. तो पहले के comparison में now there is a huge difference, progressive development, and also like there is a system. Now comes to the topic that is importance of education for development with particular reference to Pakistan education policy. Now there is a term that is called the particular reference to the policies, education policies of Pakistan. Definition of education, that it is very fundamental place. Education occupies very fundamental place for the development and progress of each country. After that, we have Pakistan education policy. Starting from 1947 till 2010, we have different policies. The changes in policies जो कि occur हुई हैं from 1947. Now the first policy starting जो थी वो थी हमारी educational conference in 1947. Now in this क्या हुआ that obviously it's the policy of education. The discussion and each suggestion जो भी था वो concern with the education था. The changes, the starting of education system is start from educational conference. जो conference हुई थी education की 1947. After that we have the report of the commission on national education. There is a report of the commission on national education जो किस में अगर हुई in 1959. देखें 1947 to 1959 इसके बीच में बिटवीन जो भी पॉलिसी थी वो रन कर रही थी इन कंट्री हमारे कंट्री में और इसके अंदर देयर इज नो चेंज वो पॉलिसी ही रन कर रही थी आफ्टर 1959 देयर इज अ चेंज देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ अ कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन दैट देयर इज सम चेंजेस जो अकर हुई उसमें आफ्टर दैट वी हैव एजुकेशन पॉलिसीज इन पॉलिसी 1972 टू 1980 इसके अंदर भी हमारे पास एजुकेशन की पॉलिसीज के अंदर चेंजेस आए इट बिकेम मोर प्रोग्रेसिव इट बिकेम मोर एडवांस्ड बट इन दोनों के बीच में एक और सन आया है जो कि 1978 72 to 80 देयर इज अ पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी व्हिच इज अकर बिकॉज ऑफ देखिए पॉलिसी में ही चल रही थी बट देयर इज अ चेंज in education policy जो किस में हुआ 1978 में. After that we have national education policy 1998 to 2010. देखिए 1947 to 1959 एक policy. After that this to this another फिर यहाँ से यहाँ तक another फिर यहाँ से यहाँ तक policies क्या कर रही थी basically run कर रही थी किस चीज़ को country के education system को. Now national education policy is starting from 1998 to 2010 इसके अंदर जो पॉलिसी थी इसमें क्या हुआ that the government introduced and emphasized that education is evident or it's the national curriculum development and each and everything concerned with the education policies जो कि एविडेंट किस में हुई 1998 to 2010 इसके अंदर भी पॉलिसीज के बारे में ही था. आफ्टर दैट वी हैव द टॉपिक दैट इज पॉलिटिकल सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान. वी हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान लाइक व्हेनेवर जैसे हम स्कूल आते हैं जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ दैट आई हैव अ बुक like this, Pak study.
इसके अंदर we have different contents like different chapters. In each chapter we have different topics, जिसके अंदर हमें क्या पता चलता है, कंसर्न किसके होता है, उसी चैप्टर के बारे में, बट वी हैव different टॉपिक्स, different आइडियोलॉजीज जो किसके साथ होती है. अब हमारे पास पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, they all are concerned with each other. और ये किससे रिलेटेड है? विद द स्टडी ऑफ पाक स्टडी. पाक स्टडीज, सोशल स्टडीज एंड जियोग्राफी, they all are connected with each other. इसके अंदर बेसिकली स्टडीज हो रही होती हैं हमारे पाकिस्तान की, एंड जियोग्राफी, अर्थ के बारे में स्टडी. एंड आफ्टर सोशल स्टडीज वी स्टडी अबाउट द सोशल. हमारी सोशल क्या क्या रिवॉल्व कर रहा है, या फिर क्या चीज़ें, कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं, या कौन से इन्वायरमेंट, means each and everything concerned with social, with earth and Pakistan we read in these subjects. They all are concerned with each other. These are called the aspects of Pakistan, like political, the education of political or politicians are different, social is different, cultural is different, economic is different. We are getting that knowledge from different occupations. Now the term is formal education. We know that the formal education means it's the education like official language. Official, you have to be professional, you show your professionalism, you have to be official, you don't able to be a casual person, you don't use any slang. इसके अंदर particular हमारे पास क्या होता है, we have a particular institute, in that we attempt different examination and we awarding certificates, and at the same time we give the degrees to students. Means it's the official, it's not the casual. At the same time in informal, the language is not official, that is not professional, and it's not, and we are able to use the casual language, or even we are able to talk like casual. After that we have scheme of studies. Scheme of study means the plan, the strategy. We have the projects of studies. We have the different plans for studies. Obviously, अगर हमारे पास एक चीज़ है जिसके बारे में हम आगे एक सिस्टम बना रहे हैं, we are going to make a system on that चीज़ पर, तो we have some schemes जिसको फॉलो करके, उस स्ट्रेटजी से चल के हम क्या कर रहे होते हैं, उस सिस्टम को रन कर रहे होते हैं. At the same time, in study, in our education, there is some schemes like curriculum development, we have teacher training, we have examinations, we have technical and vocational education, also higher education. Now come to the curriculum development. What's the curriculum development is? Whenever, let's take an example of any subject. Whenever we are going to read about any subject, we have the index, we have different subjects which we are going to read about. Every year we have new curriculum or new courses, जिसके behalf पे क्या होता है, the course is more advanced and more advanced किसके as compared to before होता है हमारा course. Now the curriculum development means the changes which occurred between the changes year. हमारे जो years के अंदर जितने साल बदलते हैं, हमारे courses change होते जाते हैं, उसके अंदर जो हमारे जितने भी studies के अंदर curriculum activities या curriculum studies के बारे में changes हो रही होती हैं, they become developed. These all are called curriculum development. After that we have the teacher training. Teacher training is very important. Why? The teachers should train. क्योंकि इन पॉलिसीज़ के अंदर भी इस चीज़ को बहुत एम्फसाइज किया था, इस चीज़ के द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी, टीचर ट्रेनिंग, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया था दैट टीचर्स शुड बी ट्रेन्ड. आफ्टर दैट वी हैव एग्जामिनेशंस. इन स्कीम एग्जामिनेशंस मीन्स ऑल ईयर वी टीच स्टूडेंट्स. हम स्टूडेंट्स को समझा रहे होते हैं ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी टॉपिक. Why? Just to prepare them for their examinations.
ताकि वो अपने एग्जाम्स जब कर रहे हो तो वो ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर जो हमने उन्हें समझाया है वो उस चीज़ को माइंड में रख के उस चीज़ पे फिर वो जब उनके पास क्वेश्चन आता है तो फिर उसको वो क्या करें, सॉल्व करें। वाई? क्योंकि उन्होंने वो पूरा साल पढ़ा होता है। एग्जामिनेशंस क्या होते हैं, क्यों वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, वाई दे आर इंक्लूडिंग इन द स्कीम ऑफ स्टडीज, because they are very important and they attempt very important role for the students, क्योंकि वो जो सारा साल पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट जो कि उनके माइंड में है, जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं, जब उनके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, दे सॉ कि उसके अंदर पूरा साल जो उन्होंने पढ़ा है वो चीज़ उसके अंदर हो रही होती है और जो whatever उनको समझ आ रहा होता है they write. So examinations are very important and also they are the scheme of studies. After that we have the technical and vocational education. Technical and vocational education are including the scheme of studies. How? Technical and vocational education, there is a difference between both of them. Technical education कहते हैं हम ऐसी education को जो कि हमारे पास machines के थ्रू हो, जैसे कि हमारे पास IT वगैरह हो, इसकी जो स्टडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, एक ड्रैग हो जाती है और इसके अंदर एक पूरा मतलब हमारे पास डिग्री होती है। एट द सेम टाइम द वोकेशनल एजुकेशन इज़ लाइक इसके अंदर डिग्रीज नहीं होती है, वी हैव द डिप्लोमा। वोकेशनल कहते हैं कि हुनर वाला जो हुनर जिसके अंदर सिखाया जाता है या फिर नज़र का टैलेंट या फिर ऐसी चीज़ें जो हमारे पास जिसके अंदर फर्दर स्टडीज़ नहीं हो रही होती है, मतलब एक हाई लेवल की स्टडीज़ नहीं होती है। इट्स बेसिकली द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ स्टडीज़। और वोकेशनल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसके अंदर यूज डिग्री नहीं होती है, वी जस्ट हैव डिप्लोमा। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ सो देयर इज जैसे टेलर होते हैं, इनके पास हुनर होता है, इट्स द शॉर्ट, क्योंकि देखें IT एंड मशीन्स या फिर इंजीनियरिंग, दीज आर द टर्म्स जिसके अंदर एक बाकायदा स्टडी होती है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, एक पूरा 100% से ज़्यादा देना पड़ता है, मीन्स इट्स वेरी ऑल्सो डिफिकल्ट। At the same time, vocational education is easy and the time period is very short. This is the difference between both of them. Then we have the higher education. Higher education means the degree level. It concerns with the universities. तो हायर लेवल में हायर एजुकेशन में हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ या फिर डिग्री लेवल की जितनी भी एजुकेशन होती है तो हायर एजुकेशन में वो काउंट की जाती है। आफ्टर दैट वी हैव प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन। देखिए वी आर गेटिंग हम तालीम तो हासिल कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वी ऑल्सो फेस द सर्कमस्टेंसेस जो कि उस चीज़ से क्या कर रहे हैं, हमें जैसे हम गुजर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ देखिए एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग नीड्स एफर्ट्स, हर चीज़ को एफर्ट्स चाहिए होती है। एट द सेम टाइम इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान वी हैव सम प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन। द फर्स्ट वन इज एटीट्यूड ऑफ द फ्यूडल। एटीट्यूड ऑफ द फ्यूडल यानी इसमें ऐसा होता है कि इंसान अपने आप को ताकतवर समझता है, यानी अपनी ताकत पे उसको गुरूर होता है और फिर उस देखिए एक जब इंसान के अंदर इस चीज़ की वो आ जाती है माइंड के अंदर कि मैं ताकतवर हूँ एंड आई हैव द पावर टू मेक डिसीजंस, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस चीज़ को गेन करके उस प्रोफेशन को वो एक्सेप्ट करने के बाद उस चीज़ का ना एक साइड इफ़ेक्ट भी आ जाता है, थोड़ा रिएक्शन भी आ जाता है। तो ये चीज़ जो होती है जो ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम में काउंट हो रही होती है दैट द फ्यूडल्स हैव मोर एटीट्यूड देन ड्रॉप आउट्स। बेसिकली ड्रॉप आउट्स में क्या होता है दैट स्टूडेंट्स लीव देयर एजुकेशन बिटवीन, यानी वो बीच में छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं अपनी स्टडीज़ को। आफ्टर दैट टीचर एब्सेंटिज्म, टीचर्स जो होती हैं उनका ज़्यादातर एब्सेंट रहना क्या करता है, स्टूडेंट्स की स्टडीज़ को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि रेगुलर क्लासेस वो नहीं दे रही होती हैं, बिकॉज ऑफ दैट उनका फिर वो चीज़ क्या होती है, एक पाथ जो चल रहा होता है उनका स्ट्रेट, फिर वो उस चीज़ से थोड़ा ना हट जाता है। देन हाई फीस ऑफ प्राइवेट एजुकेशन, वी नो दैट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं उसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हाई फीस होती है प्राइवेट की। देन शॉर्टेज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, हमारे पास कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती हैं जो कि बहुत ज़रूरत है।
Then political interference, the interference of politicians, it's also the problem in education. Accommodation of for students, यानी students की रहाइश की जो वजह होती है, this is also the cause of, this is also the problem in education. Then after we have the levels of education, starting with primary, then middle, then secondary, then higher secondary, then degree level, university level, professional education. These are the levels of education. There is a short note जिसमें further है थोड़ा किसमें policies के about that from 1947 to 1998 all the policies emphasize upon the promotion of literacy. We know that इनमें अभी भी इस चीज़ को emphasize किया जाए या फिर emphasize किया जाता है that education के अंदर जो literacy level है उसको जो है और ज़्यादा बढ़ाया जाए. How? क्योंकि जितना लिटरेसी लेवल ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू बिफोर, जितना स्टार्टिंग में था, नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस कि लिटरेसी लेवल का जो रेट है एज कम्पेयर टू बिफोर, नाउ इट्स ह्यूज. तो पहले क्या किया गया था 1947 टू 1998, क्योंकि ये स्टार्टिंग थी तो इस पर ज़्यादा एम्फसाइज किया गया था दैट द पॉलिसीज एम्फसाइज अपॉन द promotion of literacy. And after that, the important aspect of education policy 1972 to 80 was nationalization of private institutions, but it damaged the system of education. इसमें क्या किया गया था, इस एस्पेक्ट में कहा गया था, इसके अंदर नेशनलाइजेशन किया था, ज़्यादा बढ़ाया गया था, जिसकी वजह से हमारे पास कौम जो थी ना, कौम परस्ती को ज़्यादा बढ़ाया गया. बिकॉज ऑफ दैट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बिकमिंग डैमेज. तो ये चीज़ें जो है, दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, द सर्कमस्टेंसेस जो कि कंट्री फेस करता है. दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा. दैट इज ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच.